आई डोंट नो, आज आई विल बी कवर्ड इन ग्लिटर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। इतना सुंदर है कि मैंने अभी तक इसे यूज ही नहीं किया है, बस इसे रख के रखा है। कलर कोड इलेक्ट्रिक। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना मैं आपके सबसे फेवरेट क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ, एंड दैट इज व्हाट आर आई शैडोज आई कीप इन माय वैनिटी। So I have segregated all of these eyeshadows in front of me in Brown's family, in Pink's family, in Colorful family. These are my most favorite eyeshadows. Everything that I have in my vanity. So these are the eyeshadows जो मैंने ना एक ही दिन में collect नहीं किए हैं. Over the career span of 10 years, I have bought some eyeshadows before. Then I stopped using them. कुछ नया आया market में, then I bought that. And then later I shifted to the best of best in the industry. So if you are somebody who's a pro makeup artist, if you are somebody who's a beginner makeup artist, or if you are somebody who is an eyeshadow collector, this video can be your favorite. I'm going to show you some eyeshadows that can become your like favorite go-to eyeshadow palettes as well. Because earlier I was doing a lot of brides. Right now I'm only focusing on content creation. I have some of the small palettes as well, which are so trending these days. And I have also ordered some affordable palettes that I have used in the last month. So I'm going to be talking about all of these eyeshadow palettes in brief. So without a further delay, let's get started. Before we move further, I'd like to talk to you about eyeshadows in general. What are my criteria to pick up an eyeshadow? First, is it an eyeshadow that has no fallout or very minimal fallout? That's my first basic criteria. If I'm doing a bride or makeup on myself, I don't want it to mess a lot. Even though I do eye makeup before doing the base makeup, but still, if the eyeshadow falls a lot, it just increases the job of, cleaning out the lower eye area. So I like to use those eyeshadows which has minimum fallout. Now, I focus on the theme of the eyeshadow. Now, for example, if I have this eyeshadow, this has a theme going on like browns, right? So then I have the transition shade, then I have the darker shade, then I have the lighter shade. So these kind of eyeshadows are amazing for self-use. If you want just one eyeshadow, you have thought about brown makeup look, brown eye look, then it's gonna help you in that, okay? And the last point is fading of an eyeshadow. Now, there are a lot of eyeshadows that fades by the end of the day, that looks very lighter by the end of the day, and this usually happens in the darker color family. So I don't like fading of eyeshadows as well, because being a makeup artist, or if you're going to a party, you would not want that to happen. Now I can control it with a lot of bases, like if I will use a dark color base beneath, then I can still maintain it. But why? If I'm spending money on that eyeshadow, I don't want it to fade. Now, already when I'm talking about the price point, I know there are eyeshadows available in the market that, being a content creator, being an influencer, people recommend that it's like a 400 rupees eyeshadow, 1000 rupees eyeshadow. Eyeshadow अच्छे होते हैं परफॉर्म करने में, लेकिन वो फेड भी हो जाते हैं. अभी तक मैंने जितने आई शैडोज देखे हैं, अप्लाई अच्छे से हो जाते हैं, बट कुछ टाइम में वो फेड हो जाते हैं. मैंने बहुत देखे हैं आई शैडोज, अभी तक तो मुझे कोई ऐसा आई शैडो नहीं मिला. सो अगर आपको कोई इन्फ्लुएंसर लगा के आई शैडो दिखा रहा है, वाओ इट्स नाइस, कलर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है. अगर आपको इफ द प्राइस पॉइंट इज ओके फॉर यू, लाइक इफ यू आर गोइंग to a party for like 4-5 hours, then it's okay, no problems. You can buy an eyeshadow worth rupees 400, 500, 1000, 1500, no problems. And that I feel also speaks about somebody doing their own makeup, right? Then it's okay for them, the bar is little low. But when we go to a makeup artist, we expect ये सब चीजें हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, right? So then the whole responsibility falls onto the shoulder of a makeup artist, and that's why we keep such high-end eyeshadows that doesn't fade, that doesn't fall out, and that performs up to a certain level. The color payoff is amazing, right? So that's why I have both the categories over here, but I wanted to explain this theory to you so that you should also understand कि मैं अगर 400 के आई शैडो वाली की बात कर रही हूँ तो मैं क्या बात कर रही हूँ, और अगर मैं एक्सपेंसिव आई शैडोज की बात कर रही हूँ तो मैं क्या बात कर रही हूँ, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी ब्राउन फैमिली. सो ब्राउन फैमिली में ना मेरा सबसे पहला आई शैडो था जब मैंने मेकअप सीखा था ना, दीज वर मैक आई शैडोज, ओके? इन सारे आई शैडोज पे मैंने मेकअप सीखा था. Other than this, I don't remember और क्या था मेरे पास, but these were given by अनु कौशिक मैम, और उन्होंने ही मुझे मेकअप सिखाया था. It was a
personal class of 5 students only, and that's where I learned the makeup, and this was of amazing quality. Later I kept on refilling these eyeshadows, and these are all in themes of browns. Okay, इनके नाम अगर आपको चाहिए होंगे single I'll give you the names as well. I have the name list. So these are amazing. Can you see the theme? I'd like to show you properly. ठीक है, तो इसके अंदर ना सारे लाइट ब्राउन और सैटिन आई शेडोज हैं. सैटिन आई शेडोज क्या होते हैं? जिनके अंदर थोड़ी सी शाइन होती है. और मैट आई शेडोज हैं. ठीक है, इससे मेरे आई मेकअप्स बहुत इजीली हो जाते थे, क्योंकि अनु मैम बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट हैं. तो जब भी आप कभी कोई मेकअप में कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं क्या मेकअप करूं, यू विल ऑलवेज सी ब्राउन मेकअप वर्क्स ऑन एवरीबडी. ब्राउन cinnamon eyes works on everybody. So brown is something which is an important part of Bollywood, which is an important part of subtle makeups. You'll always see people doing brown makeups. In fact, you'll always see me or some bigger artists doing like brown base and then putting color on top. That's how we all do subtle makeups and infuse colors in these makeups. So that's why brown is very important. Now, जब भी आप मेकअप की बात करते हो ना, आपके पास इन 3 तरीके के आई शेडोज होने चाहिए. मैट आई शेडोज जो कि आपकी आई का बेस बनाते हैं, राइट, एंड इट वर्क्स ऑन एवरीबडी, ऑल एज टाइप्स, मैच्योर स्किन पे भी चलेगा. Then you want satin eyeshadows. Satin eyeshadows are like जिनके अंदर थोड़ी सी शाइन होती है. Now this is a satin eyeshadow that shines like a highlighter. And then later comes glittery eyeshadows. फिर उसके अंदर further categories आती हैं, liquid glitters, powder glitters, pressed glitter. So इस तरीके के आई शेडोज आपके पास जरूर होने चाहिए. मैट आई शेडोज इज फर्स्ट क्राइटेरिया. मैट तो आपके पास हमेशा होने ही चाहिए, राइट. सो मैंने स्टार्ट किया था मैक के आई शेडोज से. उसके बाद लेटर केम हुडा ब्यूटी आई शेडोज. हुडा ब्यूटी के आई शेडो थीम पैलेट्स बहुत अच्छी थी, लेकिन हुडा ब्यूटी के आई शेडोज बहुत ही ज्यादा फॉल करते थे. तो मेरे पास ये सारे आई शेडोज हैं जो हमने यूज किए हैं, और नाउ आई डोंट यूज देम, बट आई हैव ऑलवेज केप्ट देम विद मी, क्योंकि टू नो फ्रॉम वेयर यू आर इवॉल्विंग, टू नो योर रूट्स एज वेल. इसके बाद अगर आपको याद होगा तो मॉर्फी का ये ब्राउन आई शेडो बहुत चला था. आपने सब मेकअप आर्टिस्ट के पेज पे देखा होगा. तो अब तो मॉर्फी के ये पैलेट्स अवेलेबल नहीं है, बट अगर इसकी जगह मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहूंगी तो पी लुइस के पैलेट आते हैं, जिसमें मैट आई शेडोज भी होते हैं और सैटिन आई शेडोज भी होते हैं. एंड दे आर लाइक अ डील, कि जिसके अंदर आपको सब तरीके के आई शेडोज आ जाते हैं. और अगर आप बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हो या थोड़े से भी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हो ना, अच्छे का मतलब मेरा क्राइटेरिया यहाँ पे है कि अगर आपके पास थोड़े से 4-5 हजार तक के क्लाइंट आते हैं, तो एक बार इन्वेस्टमेंट कर लो पी लुइस के पैलेट में, आप हर तरीके का मेकअप कर पाओगे. तो मॉर्फी का ये आई शेडो पैलेट मेरे पास बहुत रहा है. मेरी अकेडमी में ये पता नहीं मैंने कितने खत्म किए हैं. सो दीज वर द आई शेडोज दैट आई यूज्ड, एंड देन इसी का ये कलरफुल वर्जन आता था. अब आजकल तो मार्केट में बहुत सारे आई शेडोज आ गए हैं, और जो सस्ते आई शेडोज होते हैं ना, वो फेड भी होते हैं और वो फॉल आउट भी करते हैं. तो ये सारे आई शेडोज वैसे से ही हैं, लेकिन उस टाइम पे इतने आई शेडो के ऑप्शंस पता नहीं थे, या इंडिया में अवेलेबल नहीं थे, या मैं तब नई नई मेकअप आर्टिस्ट बन रही थी. तो मैंने ये सब तो काफी खरीद के रखे थे, और इससे हमने काफी प्रैक्टिस की है. मेरे बच्चों ने काफी प्रैक्टिस की है. बच्चे मतलब मेरे स्टूडेंट, मेरे अकेडमी वाले बच्चों ने काफी प्रैक्टिस की है. ठीक है, अब ये थे मेरे ब्राउन आई शेडोज. अब ब्राउन आई शेडोज इसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड राइजिंग इन माय करियर, देन आई बॉट नताशा डेनोना आई शेडो. उस टाइम पे मुझे ये था कि मुझे बस मेहनत करनी है और मेरी वैनिटी बनानी है. सो दिस इज नताशा डेनोना आई शेडो. अब इसके अंदर आप देखोगे ऑरेंजी जो ट्रांजिशन कलर होता है वो भी है, देन ब्राउन कलर्स भी हैं, देन शिमर कलर्स भी हैं, जो भी आप इंडियन ब्राइड करते हो जब भी उस तरीके के कलर्स भी हैं, और थोड़े डार्क कलर्स भी हैं. इस तरीके का पैलेट आपका ऑल इन वन पैलेट होता है, जो आपके रेड लहंगास के साथ, आपके कोई भी तरीके की इंडियन ब्राइड जब तैयार होती है ना, आप इससे लाइट और डार्क दोनों तरीके के मेकअप कर सकते हो. तो मैंने नताशा डेनोना के कुछ पैलेट्स मंगाए थे. अब वो थीम वाइज मंगाए थे, धीरे धीरे बाकी थीम्स में भी दिखाऊंगी, बट अभी हम ब्राउन थीम्स की बात कर रहे हैं. तो ब्राउन में मैंने ये खरीदा. उसके बाद जब ब्राउन की बात आई तो मुझे चाहिए था कि एक द अटमोस्ट टॉप लेवल क्वालिटी पैट मकग्राथ पैलेट. तो उसके बाद मैंने पैट मकग्राथ पैलेट भी
उसी सीजन में खरीदा था। एंड ये है मेरा पैट मकराथ मदरशिप 5 पैलेट। चैनल पे क्वेश्चन आया था किसी का कि पैट मकराथ के पैलेट्स कैसे हैं। पैट मकराथ के पैलेट्स ऐसे हैं कि उनके जैसा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड आई वुड से दैट इज कंपेरेबल विद द पैट मकराथ पैलेट्स। सो these shine, the quality, this is like a glittery pressed glitter eyeshadow. Honestly the camera doesn't do justice to the glitters and glitter eyeshadow, तो इसमें उतनी अच्छी तरीके से मैं आपको दिखा ही नहीं पाऊंगी कि ग्लिटर शाइन करती कैसे है, उसके लिए एक्सपोजर डाउन करके एंड यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू। There's the shade shifter eyeshadow in this as well. सामने से जब मैं इसे देख रही हूँ, जब ब्राइड रेडी होती है, जब ये आई शेडोज देखे जाते हैं ना, दे लुक सो ब्यूटिफुल. सो आई वुड से देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड लाइक पैट मकराथ आई शेडोज. नाउ पैट मकराथ भी मैंने ऐसे नहीं खरीदा, बहुत ही थीम के हिसाब से खरीदा था. तो जब मैं ब्राउन लेने लगी थी तो इट्स ऑल फॉर माई ब्राइड्स जो कि यू नो रेड लहंगास पहनती हैं. एंड जब भी ब्राउन सिनेमन स्मोकी आईज में करती हूँ तब मैंने ये वाला आई शेडो पैलेट लिया था. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर आई शेडो पैलेट्स, इसके बाद जब माई करियर अगेन यू नो वेंट अप, आई हैड मोर मनी, आई मेड मोर मनी, देन आई इन्वेस्टेड इन द टॉप मोस्ट क्वालिटी ऑफ आई शेडोज विच आर मेड इन these are Vizart palettes. Okay, now इसके ना मैंने सारे बेसिक्स सारे मेरे एक्चुअली गोल था कि मेरे सारे मैट आई शेडोज जो हैं वो सारे Vizart के होने चाहिए. तो इसलिए फिर मैंने Vizart के सारे पैलेट्स खरीद लिए थे. अब इनकी अगर मैं आपको थीम दिखाऊं, सो दीज आर ऑल ब्राउन्स, ब्लैक, कलरफुल फैमिली. दिस इज ऑल ब्राउन्स. This is VPE14 Neutral Mattes Milli palette. I'll name all of these, okay? Then this is all browns. Can you see? Literally zero fallout, zero fading, and top-notch quality. There is nothing like these in matte eyeshadows. जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने टॉप मोस्ट मेकअप एजुकेटर्स की वीडियोस देखी हैं, जितनी मैंने यू नो क्लासेस ली हैं फ्रॉम बॉबी ब्राउन, फ्रॉम नम्रता सोनी मैम, जितनी भी मैंने चीज़ें आज तक याद करी हैं, पढ़ी हैं, सीखी हैं, उन सब के बेसिस पे बता रही हूँ. अब इसके बाद वर्ल्ड चेंज हो गया हो तो मैं नहीं जानती, बट जब तक मुझे पता है तब तक दीज आर द बेस्ट आई शेडोज इन फैशन एंड मेकअप इंडस्ट्री. ठीक है, अब मेरे ये ब्राउन पैलेट्स मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं. इसके बाद मेरे पास ना 2 बॉबी ब्राउन के सिंगल आई शेडोज हैं जो कि मैं मेरी ब्राइड्स पे यूज करती हूँ जब मैं सिनेमन आइज करती हूँ. तो ये जो है ना इस तरीके के आई शेडो हैं, मूनस्टोन और सैंडस्टोन है इनका नाम. तो इन दोनों का कलर कॉन्ट्रास्ट भी दिखा देती हूँ. थोड़ी सी सिल्वर शाइन आती है और ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर का है. कैन यू सी? So, if you are a bride to be, if you are a luxury makeup collector, if you have that kind of budget and if you want just 2 eyeshadows जो कि आपके पास किसी भी तरीके का बेस मैट पैलेट है, कोई भी आपके पास आपको लगता है कि थोड़ा अफोर्डेबल भी खरीद सकती हो, वो लेके उसके ऊपर अगर आई शेडो टॉपर की तरह यूज करना है ना, These 2 are so beautiful. अगर खरीदना भी ना हो ना, मैं तो बोलूंगी कि बॉबी ब्राउन के स्टोर में जाके just try these 2 and I can guarantee you will not come back empty-handed if you really like these kind of eyeshadows. I don't even have the count मेरी कितनी brides ने ये खरीदे हैं because I used to tell everybody कि ये दोनों खरीद लो और शादी के बाद you will be now ready in just like 2 minutes because इन्हें literally ऐसे करके ऐसे लगाना है अपनी eyes के ऊपर and then your eyes starts to sparkle so beautifully. Nothing too much, nothing too gaudy, very little glitters and very beautiful. No fallout at all. Okay, so I also picked the smaller Natasha Denona palettes as well. So if you are somebody who wants to keep some smaller eyeshadow palettes, you can keep these also. इसमें भी देखो थीम है and they are available in multiple color family. Like ये थोड़ा सा पिंक में है, ये थोड़ा सा ब्राउन में है, then I have black one over here as well.
सो इस तरीके की आप सिंगल सिंगल भी ले सकते हो, एंड दीज आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, आई गेस ये 3-4 हज़ार की कैटेगरी में ही थे. एंड दिस ब्लैक इज ब्यूटिफुल फ्रॉम नताशा डेनोना, इट्स वेरी ब्लैक. सो ये भी आप ले सकते हो, ये ना सिंगल थीम आई शैडोज होते हैं. सो लाइक आई टोल्ड यू कि ट्रैवल में भी ईजी रहेगा, और इस तरीके के आई शैडोज ना थीम वाइज बहुत अच्छे रहते हैं, फिर क्लटर नहीं होता ढूंढने में. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी पिंक आई शैडोज दैट आई हैव इन माई वैनिटी. ओके, सबसे पहले पैट मकग्राथ से ही शुरू कर लेते हैं क्योंकि सबसे ऊपर यही रखा हुआ है. सो अब जब हम सिनेमन आइज करते हैं ना, उसी तरह मॉर्निंग में या संगीत में हम प्लेफुल आइज करते हैं या फिर हम पिंक आइज करते हैं जनरली. सो व्हेन वी डू पिंक आइज, आई वांट अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ पिंक एंड देन बेस्ट of best pink colors. If somebody is wearing anything pink or white or light pink or anything, when it's engagement time, I don't like to do very gaudy makeup. I like to do very soft makeups at that time. So ये है पैट मकग्राथ का यूटोपियन ड्रीम. ठीक है, इसमें सारे पिंक हैं आई शैडोज. कैन यू सी? दिस इज ऑल पिंक. And these are so beautiful. I mean, there are some duochrome colors. So you will always find a duochrome color, a glittery color and matte color in Pat McGrath palettes, because that's how she makes the theme of the palette कि आपके पास ना हर तरीके के कलर्स हों प्ले करने के लिए. See, purple pink, this. I have done enough shoots with these. So beautiful, right? और ये तो मुझे नहीं लगता कि कभी खत्म होंगे. दीज नेवर एंड. आई डोंट नो हाउ मेनी ब्राइड्स आई हैव डन विद दीज एंड दे स्टिल गोज ऑन एंड नथिंग हैपेंस टू आई शैडो, लाइक नथिंग एज सच. दीज आर ऑल पाउडर्स. सो 6-7 साल 8 साल तक तो कुछ नहीं होता आई शैडो को, until and unless it has something like a cream thingy or some other thing. Till the time they are powders, they keep on working. If you have an older eyeshadow palette, please test it once. But क्योंकि आंख के आसपास लगाने में कोई भी ऐसा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. But the eyeshadow palette keeps on working. So this is my favorite Pat McGrath eyeshadow palette. Okay. Now हुडा की जब हम बात करते हैं कि मेरे पास हुडा आई शैडो पैलेट भी थे, तो ये देखो पिंक थीम में मेरे पास ये आई शैडो पैलेट था हुडा ब्यूटी का, जो मैंने काफी यूज किया है ब्राइड्स पे. और ये तो पता नहीं मेरा शायद दूसरा तीसरा ही होगा, क्योंकि ये मेरे सीनियर असिस्टेंट्स भी यूज करते थे, उन्हें भी दे देती थी. कि जनरली क्या होता है कि ब्राइड वांट्स द मेन इवेंट विद यू एंड रेस्ट असिस्टेंट्स कैन डू ऑन अदर डेज लाइक एंगेजमेंट पे, मेहंदी पे. So they used to take all the time from me कि मैम ये दे दो हमें, we'll use it. Okay. So एक होता है पिंक, एंड इसके बाद हुडा का ये पैलेट आया था which is like dusty pink and then some other playful colors. This I haven't used much. इसमें 1-2 कलर थे जो काफी अच्छे थे, like these two I really liked. तो ये मैंने कुछ यूज किए हैं, बट अदर देन दैट ये सारे काम मेरे पैट मकग्राथ कर देता था, तो मैंने इतना इसे यूज नहीं किया है. लुक्स लाइक अ न्यू पैलेट ओनली, बट या सो दिस यूज टू कम, बट अब ये शायद नहीं आता है इतना. और हुडा के आई शैडो पैलेट्स में बाद तक, इस वाले पैलेट तक तो थोड़ा कम फॉल आउट होने लगा था, वरना तो फॉल आउट था. ठीक है, मुझे तो नहीं ऐसे आई शैडोज मिले थे जिनमें फॉल आउट ना आता हो, तो पहले बहुत ध्यान रखना पड़ता था. बाद में आई शैडो पैलेट्स बहुत अच्छे हो गए थे. मैक के आई शैडो पैलेट्स हमेशा से ही अच्छे थे. नाउ जब हम बात करते हैं पिंक थीम की, तो मेरे पास मैक का ना ये बरगंडी x9 आई शैडो पैलेट था. ये ना पिंक ही है, अगर आप देखोगे इसकी अंडरटोन पिंक है. काफी सटल आई मेकअप्स करने में मेरे काफी काम आया है, एंड टॉप नॉच क्वालिटी, एंड इसको बिल्ड करना पड़ता है थोड़ा सा, बट वंस इट गेट्स बिल्डेड इट लुक्स ब्यूटिफुल ऑन द आईज. इसी की तरह ना एम्बर x9 आता था, जो कि मैं खरीदना चाहती थी. ब्राउन कलर का आई शैडो पैलेट था, बट नेवर इन माई करियर आई वॉज एबल टू बाय दैट बिकॉज इट वॉज ऑलवेज आउट ऑफ स्टॉक. लेटर इट गॉट डिसकंटिन्यूड. आई हैव ट्रेवल्ड द वर्ल्ड, जहां जहां भी जिस कंट्री में मैं गई हूँ उस आई शैडो को ढूंढने के लिए, उस पैलेट को ढूंढने के लिए मुझे कभी नहीं मिला. तो फिर मैंने सिंगल आई शैडोज खरीद लिए थे उस पैलेट के, एंड देन आई
used all those eyeshadows, but MAC के जो बेसिक आई शेडोज होते हैं ना, ब्राउन्स एंड एवरीथिंग, दे आर ब्यूटिफुल. तो अगर आप स्टार्टिंग में पैलेट्स बनाना चाहते हो जो हमेशा चलते रहें कुछ लंबे साल तक, तो आप अच्छे आई शेडोज में इन्वेस्ट करना, तब आपका काफी अच्छे से वक्त निकल जाएगा उन आई शेडोज के साथ. ये मेरा एक्सट्रीमली न्यू आई शेडो पैलेट है जो मैंने रिसेंटली खरीदा था. दिस इज टॉम फोर्ड इन पिंक अगेन. कैन यू सी दिस? या, दिस इज द चेरी आई शेडो. सो प्रिटी, राइट? इतना सुंदर है कि मैंने अभी तक इसे यूज ही नहीं किया है, बस इसे रख के रखा है कि मुझे चाहिए था, ये होना चाहिए, मेरी वैनिटी में होना चाहिए, और अभी तक मैंने खुद पे भी इसे यूज नहीं किया है. सो आई होप आई विल यूज इट वन डे. दिस इज माय Tom Ford eyeshadow. In pinks, I have another Natasha Denona palette. It's retro palette. इसमें आप देखोगे ना तो ये सारे ना पिंक से थोड़े से डार्क हैं. These are like cherry themed eyeshadows. So I have done a lot of brides later in like 2021 and in 2020 with cherry smoky eyes. It was too much trending at that time. So cherry eyes के लिए मैंने ये वाला eyeshadow खरीदा था और ये बहुत अच्छे से चलता था. इसका ये वाला कलर, ये कलर बहुत अच्छे से चलते थे, तो इससे मैंने काफ़ी अच्छे मेकअप्स किए हैं एंड आई रियली लाइक दिस. सो प्लेफुल मेकअप्स की जब बात करते हैं, सो लास्ट पिंक पैलेट है मेरे ख्याल ये, तो मैंने ये खरीदा था नॉर्वीना पैलेट ABH का. और ये पैलेट ना काफ़ी मेरे काम आया है फॉर दिस कलर, फॉर देयर वाज दिस कलर, फॉर दिस लाइक अ सैटनी ग्लिटर आई शेडो. ये काफी अच्छी लगती थी. सॉरी, इट्स लाइक दिस डुओक्रोम सॉर्ट ऑफ ग्लिटर. तो ये काफी अच्छी लगती थी सिल्वर के साथ मॉर्निंग मेकअप लुक्स में. तो ये मैंने काफी यूज किया है विद पिंक आई पेंसिल्स. आई डोंट नो, आज आई विल बी कवर्ड इन ग्लिटर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो. Charlotte Tilbury's Walk of No Shame, अमेजिंग क्वालिटी पैलेट. तो आप ये भी ले सकते हो. इसके अंदर जो यू विल फाइंड 2 सैटनी आई शेडोज, 1 लाइट कलर आई शेडो एंड 1 मैट आई शेडो. सो देर इज अ थीम गोइंग ऑन ओवर हियर एज वेल. इन चारों को आप यूज कर सकते हो इन वन थीम, और डिफरेंट आई लुक्स भी कर सकते हो इनसे. सो These are also nice. और इसके अंदर और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं शार्लेट टिल्बरी में, सो यू कैन डेफिनेटली कीप दीज. अच्छा, ब्राउन आई शेडोज में ना मेरे 2 आई शेडो रह गए दिखाने, जो कि हैं दिस वन अगेन फ्रॉम टॉम फोर्ड. दिस इज बॉडी हीट. ब्राउन थीम्स में ही है. डार्क ब्राउन आई शेडो कर सकते हो, लाइट ब्राउन आई शेडो कर सकते हो, और ये सारे ना थोड़े से सैटिनी फिनिश किए हैं. दीज आर नॉट ऑल ग्लिटरी, बट दीज हैव लाइक वेरी सैटिनी फिनिश. जो सैटिनी फिनिश के आई शेडोज होते हैं ना, दे हैव अ वेरी गुड कलर पे ऑफ एंड दे कम्स लाइक ग्लाइड्स ऑन ब्यूटिफुली ऑन द आईज. कैन यू सी? glides on beautifully on the eyes and looks a little satiny. So if you have a lot of wrinkles on the eye, आप इसे थोड़े बड़े ब्रश से लगा सकते हो. इतना सैटिनी नहीं आएगा and it will look also nice. And if you want to just pack it up, you can pack it up and it can look, very shiny. Then you can top it up with some glittery eyeshadow, or you can leave it as is as well. So these gives very sultry feel to the eyes. Now, one more brown eyeshadow जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था बट रह गया इसके बारे में बात करना, इज दिस Dior eyeshadow. इसको ना मैंने इसको जस्टिस नहीं कर सकती हूँ मैं ये बोल के कि ये बहुत बुरा है या बहुत अच्छा है. मैंने ना इसे बहुत लूजली यूज किया है. कई बार ऐसा होता है कि हमें स्प्रे करना पड़ता है पैलेट पे एंड देन वी डिप आवर ब्रश इन इट. सो आई ऑलवेज यूज टू स्प्रे फिक्स प्लस and then we just use the eyeshadow. So sometimes it gets settled on the eyeshadow and the brush stops picking the eyeshadow. So you have to scrape the eyeshadow off from the top and then आप उसको use कर पाओगे. तो इसको ना मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसे स्क्रेप नहीं किया है और इसका ना बस कलर उठना थोड़ा सा कम हो गया है. However, this color is so beautiful for every day. I mean,
If you'll ask me whether I will buy this palette again or not, yes, I will definitely buy this palette for myself again, and I would not like to use it loosely. And the quality is top notch. The darkest brown over here is not that brown, not that black. This I feel is just for giving the depth in your eye. Otherwise, this color, this is a creamy eyeshadow over here on the top. So very good eyeshadow palette. Okay, it's just that I'd like to give it 7 out of 10, just because I use it badly, not because the quality is bad. Maybe if somebody already has it, let me know in the comments how is this one going for you. Okay, so brown pink eyeshadow palettes की जब हम बात करते हैं ना, I went to the Nykaa store. I saw a girl wearing an eyeshadow, and then immediately I asked her what eyeshadow you're wearing. That was the salesperson over there, and she just told me it's Givenchy Inattendu 3, and I bought this eyeshadow. This is wow. You just take this brown color and apply it on top of your eyes, and it just looks so beautiful. Gives you like one eyeshadow and done sort of look. This is the eyeshadow that you should be buying. This has pink, this has brown, this has this amazing purplish sort of a color that looks like this, like a very party color. So although I haven't used it much because मैं तो कभी खुद से रेडी होती ही नहीं थी, मैंने तो जो खरीदा है ब्राइड्स के लिए ही खरीदा है, बट ये बेचारा कंफ्यूज हो गया कि मैं इसे यूज करूंगी या नहीं, तो ये बेचारा इस चीज में बचा रह गया. अब मैं इसे कभी कभी यूज कर लेती हूँ, बट क्वांटिटी इतनी है कि अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है. बट वेरी ब्यूटीफुल आई शेडो. शिवंशी का आई शेडो का कलर पे ऑफ ग्लिटर्स, इसके अंदर ना बहुत छोटी छोटी सी शाइनी ग्लिटर्स हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं. तो ये सब उनके लिए दिखा रही हूँ जो छोटे आई शेडो पैलेट्स हैं, स्पेसिफिकली उनके लिए दिखा रही हूँ जो अपनी वैनिटी में इन आई शेडोज को रखना चाहते हैं, राइट. सो ये आई शेडो बहुत अच्छा है उस लिहाज से. मैंने आपको पिंक दिखा दिए, ब्राउन दिखा दिए. नाउ अगर हम बात करते हैं सिंगल आई शेडो की, तो एक बार ही हम मेरे Chanel के आई शेडोज भी देख लेते हैं. दीज आर द 2 आई हैव. Now I wanted some colors in eyeshadows, so I bought this green and purple from Chanel, and very less used eyeshadows. ये बेचारे बस जब कभी कभी कलर्ड आई लुक्स करनी होती थी तो यूज होते थे, अदरवाइज बहुत ज्यादा ये यूज नहीं हुए हैं क्योंकि I bought them later in my career in like 2017. By that time I was only doing the brides and rest my assistants were doing the rest of the functions. So इतने ज़्यादा कलर का ऑप्शन मुझे मिला नहीं खेलने को, तो इतना यूज़ नहीं कर पाई मैं, क्योंकि एक सर्टेन स्टैंडर्ड सेट हो जाता है मेकअप आर्टिस्ट का कि नेहा आपकी वो वाली ब्राइड मुझे अच्छी लगी थी, वैसे ही करनी है. तो नेहा ने अगर चेरी आइज कर दी तो चेरी ही चली, नेहा ने अगर ब्राउन कर दी तो ब्राउन ही चली. और उस टाइम पे स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा सिनेमन का था, और आई थिंक अभी भी है और हमेशा रहेगा, बिकॉज सिनेमन वर्क्स ऑन एवरीवन. नाउ I bought this palette after seeing this on some makeup artist table, and I completely loved it. So I don't remember if it was Meena ma'am, because I've taken Meena ma'am's classes as well. लेकिन classes लेने के 1-2 साल बाद मैंने देखा था शायद उनकी टेबल पे या somebody else, I don't remember. तो ये मुझे काफी अच्छा लगा था. This is all glittery pressed eyeshadows. And these are all duochrome eyeshadows. The quality these have, not available in India, but the quality these have, I think nothing in the, so good. Look, the shade shifting, the duochrome, the kind of feel, the satiny finish, there is no fallout. Amazing for party looks. Beautiful eyeshadows. Now these I have seen them on a page which is called as Let's Dollop on Instagram. उन्हीं से मैं अपने सारे आई शेडोज मंगाती हूँ, बट ये तो मैंने कनाडा में ही ऑर्डर कर दिया था, तो ये मुझे वहीं खरीद लिया था मैंने इसे. दिस इज निन हिंड्रेन पैलेट, और इसके ना और भी कलर्स मैंने लेट्स डॉलप के पेज पे देखी है. नाउ दिस इज नो गारंटी गिवन कि उनका पेज बहुत अच्छा है,
मैं नहीं जानती किसका पेज कैसा है, बट आई हैव सीन ऑन देयर पेज, मैंने उनसे काफ़ी प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, उनके पेज पे ये वाले आई शेडोज मैंने देखे हैं, तो आप वहाँ से सोच सकते हो लेने की। कुछ कलर्ड आई शेडोज की बात कर लेती हूँ जो मैंने यूज़ किए हैं। तो मॉर्फी के आई शेडोज तो मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है। उसके अलावा मैंने जब वाइजआर्ट के पैलेट्स खरीदे थे, आई बॉट दीज कलर्ड आई शेडोज फ्रॉम वाइजआर्ट एज वेल। दीज आर ऑल द बेस कलर्स, ठीक है। सो ब्यूटिफुल, राइट। सो ये मैंने खरीदे थे बहुत पहले ना, फैशन आया था लिक्विड आईलाइनर्स का, जो कि ये सुवा ब्यूटी का पैलेट है। ये वाटर कलर टाइप हैं जो कि एक बार लगा दो देन सेट हो जाते हैं। तो ये मैंने थोड़ा यूज़ किया ही है। एंड देन हुडा के ना बीच में ये कलर्ड आई शेडोज आए थे, ये भी बहुत थोड़े थोड़े मैंने यूज़ करे हैं, इनकी ग्लिटर्स यूज़ करी हैं। और फिर उसके बाद मेरे पास दूसरे आई शेडोज थे तो इनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट ये पेस्टल आई शेडोज हुडा के आए थे, इन्हें मैं नहीं रेकमेंड करती इतना, बिकॉज अब तो शायद ये आते भी नहीं है। कुछ टाइम के लिए ही आए थे, उस टाइम खरीदे थे, उसके बाद कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किए मैंने। जो मैं रेकमेंड करती हूँ वो है मून डस्ट, अर्बन डिके की। जितने भी ग्लिटरी आई शेडोज है ना, खरीद लेना, मैं हमेशा रेकमेंड करूँगी क्योंकि क्वालिटी टॉप नॉच। मैं जब कलर्ड आइज करती हूँ, आई टोल्ड यू मैं ब्राउन बेस के साथ कलर्ड आइज करती हूँ, ग्लिटरी आइज करती हूँ, एंड आई लव दैट। वो मैंने मीरा मैम से सीखा है। आई लव हर स्टाइल ऑफ डूइंग द मेकअप, and that's where I got to know about Moondust eyeshadows, and then I got this palette, Urban Decay Moondust palette. Beautiful palette, abused by Neha Devgan. But what a palette, what a palette. I mean, there is nothing like this. So अमेजिंग। और ये ना सस्ती भी है, तो पैट मकग्राथ बाद में ले सकते हो, पहले ये ले सकते हो। इसके लिए इसके साथ आपको मैट आई शेडोज की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ ऐसा ना मेरा एक तो खो गया है, बट जब मेरे आई शेडोज बहुत ज़्यादा हो गए थे और कुछ ना टूटने लग गए थे ट्रैवल में, तो मैंने जीजी पैलेट्स बनाए थे। और यूएस से मेरी मासी आ रही थी तो मैंने उनसे मेरे पैलेट्स मंगाए थे, जीजी पैलेट्स। और उसके अंदर ना मैंने अपने सारे कलर्ड आई शेडोज सेट किए थे। अब तो ये आई शेडोज 100% एक्सपायर्ड हैं, बट एज आई टोल्ड यू आई डोंट थ्रो थिंग्स, तो ये बस रखा है in my collection, but these are all eyeshadows that are from MAC. और ना टू फेस्ड का एक आई शेडो पैलेट आता था चॉकलेट करके, आई गेस, और एक पिंक उसके अंदर आई शेडो होता था, एक ब्राउन, बहुत सुंदर होता था। वो भी मेरे यहाँ पे ये लगे हुए हैं, ये उसी पैलेट के हैं। सो टू फेस्ड से मुझे याद आया कि अगर आप अब इंडिया से ही कुछ ऑप्शंस लेना चाहते हो ना, तो टू फेस्ड में बहुत अच्छे आई शेडोज मैंने देखे थे। और नताशा डेनोना भी अवेलेबल है, और मैक तो अवेलेबल है ही इंडिया में। तो इंडिया में आई शेडोज की कमी नहीं है, देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इन इंडिया। तो आप जब भी पैलेट्स बनाने लगो ना, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, एक ब्राउन रख लेते हैं, एक पिंक रख लेते हैं। कलरफुल का शौक है तो कलरफुल रखना, वरना छोड़ देना। उसके साथ आई पेंसिल्स और आई लाइनर्स रख लेते हैं। और ग्लिटर्स का शौक है तो सिंगल सिंगल ग्लिटर मंगा लो। इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली शैम्पूर का शायद एक ग्लिटर मंगाया था, और वो इतना प्यारा था, बहुत अच्छा आई शेडो था वो, सिंगल आई शेडो। मैंने ना अपनी अफोर्डेबल वाली वीडियो में बताया है, वो आई शेडो डुओ क्रोम आई शेडो था, बहुत अच्छा था, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो अब जो मैंने अफोर्डेबल आई शेडोज रिसेंटली मंगाए थे ना, उनकी एक बार बात कर लेते हैं। ये मेरे अफोर्डेबल आई शेडोज हैं। दिस इज मिलानी गिल्डेड मिनी पैलेट, बहुत बढ़िया चलता है। आई लुक बहुत अच्छी हुई थी मेरी इससे, ठीक है, बढ़िया है एवरीडे यूज के लिए, या यू नो दिवाली मेकअप करना है, बेसिक मेकअप करना है 4-5 घंटे के लिए, बहुत अच्छा है। आप मैकफिक्स प्लस स्प्रे करो यहाँ पे, या पानी स्प्रे करो थोड़ा सा यहाँ पे, ब्रश डिप करो, एक्सेस निकालो पहले, फिर ब्रश को इसमें डिप करो एंड यूज करो, कलर पे ऑफ आ जाएगा। फेड हो जाता है, लेकिन प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब जैसे इसकी पैकेजिंग को देख रहे हो आप, स्विस ब्यूटी का मैंने मंगाया था, पर मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया है। देखो मंगाए मैंने भी इसी हिसाब से थे कि ब्राउन है होने चाहिए, कुछ पिंक होने चाहिए जो मैं आपको बता पाऊँ। तो ये स्विस ब्यूटी का मैंने खोला नहीं था, पर इसकी थीम मुझे ठीक लग रही थी,
मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अंदर ये जो ऑरेंज कलर्स होते हैं ना और जो लाइट कलर्स होते हैं ये ट्रांजिशन एरिया के लिए होते हैं, बाकी फिर आप कलर बिल्ड करते हो। और ये बीच में इसका शाइनी सा कलर है। ठीक है, पर इसे मैंने यूज़ नहीं किया है, इसकी क्वालिटी के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ। मैंने यूज़ किया था ये पिंक वाला फ्रॉम नायका एंड दिस इज आई कलर पैलेट 07 ब्रंच पार्टी। ओके, दिस वन आई यूज्ड। कलर पे ऑफ बड़ी मुश्किल से आता है बट आ जाता है तो ठीक लगता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने ना के ब्यूटी का एक आई शैडो पैलेट भी मंगाया था बट अभी तक मैंने उसे यूज़ नहीं किया है और वो मुझे भी नहीं पता कि वो मैंने कहीं रख दिया है। एंड दैट वाज ऑफ ब्लू कलर, तो वो यूज़ करूँगी तो उसका मैं आपको बताऊँगी। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे कनेक्टेड रहना, वहाँ पे बता दूँगी। मार्स का एक ये मंगाया था बट अभी इसे भी मैंने यूज़ नहीं किया है। ये कलर्ड आई शैडोज़ के लिए मंगाया था। कलर्ड आई शैडोज़ के लिए NYX के बहुत सारे आई शैडोज़ आते हैं इंडिया में, तो आप वो भी ले सकते हो। बट देखो यार, मुझसे नहीं होता ये बोलना कि बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट मैं नहीं ये बोल सकती कि भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मुझे, क्योंकि मेरा दिमाग ना क्लियरली सेग्रीगेट करके रखता है इन चीज़ों के अंदर कि ये कितना अच्छा है, ये कितना कम अच्छा है। तो अच्छे होते हैं आई शैडोज, आपको कलर देते हैं आई शैडोज, बट वही है कि जब व्हेन यू सी दी टॉप नॉच थिंग तब आपको नीचे वाली चीज़ें देखने में ना थोड़ी सी ज़्यादा बार आई थिंक हाई सेट हो जाता है और आप फिर बहुत ज़्यादा जज करने लगते हो। तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझसे अगर आप पूछोगे तो there is a clear difference. There is a marginal difference between the quality of high-end eyeshadows and affordable eyeshadows. But I will always ask you to spend your maximum money on your base products rather than your eyeshadows, इवन इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि बेस प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी स्किन के लिए, हमारे ओवरऑल मेकअप के लिए। आई शैडो में ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पैक ज़्यादा करना पड़ेगा, बेस बाद में लगाना पड़ेगा, तो कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, दैट्स हाउ आई talk about my eyeshadows and this was my whole collection about eyeshadows. Now मैं आपको कुछ चीज़ें ऊपर से दिखा देती हूँ कि मेरी जो ये हैं ये मेरी ग्लिटर कलेक्शंस हैं। इन्हें मैं खोल नहीं रही हूँ, किसी और वीडियो में हम इनके बारे में बात कर लेंगे। बट स्टार्टिंग में मेकअप स्टूडियो थे, फिर फॉरएवर 52 के मेरे ग्लिटर्स थे, मैक की ग्लिटर्स हैं। देन आई हैव ऑलवेज यूज्ड द क्रीम आई शैडोज एज वेल and the paint pots of MAC that you might have heard of. Paint pot जो आते थे, soft ochre, then you know these Born to Beams, this was a glittery one. Then my Krylon glitters, Danisa Merrick's eyeshadows that I have. This is Danisa Merrick's purple eyeshadow, and then some of the loose pigments as well. I have used them from MAC का blue brown eyeshadow, then Inglot pigments, and then Tom Ford cream eyeshadows. Tom Ford का पता नहीं ये अब मिलता है कि नहीं, but I have completely enjoyed Sphinx and Spice. These two Tom Ford eyeshadows I have used a lot in my vanity. Okay, I think these are 3 or 4, I don't know which number, but I have always restocked them. And then these are my Krylon Makeup Studio and Inglot glitters. Okay, इनके बारे में आराम से बात करेंगे क्योंकि अगर मैंने ये सब अभी खोली तो रायता फैल जाएगा। And I have nobody to help me with so many glitters, and if I want to apply them बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई आई शैडोज। इसके अलावा अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ लेना। और ये ना काफ़ी रॉ वीडियो है, थोड़ी जल्दी में बनाई है बिकॉज मैं सारी चीज़ें ऐड भी करना चाहती थी और ये वीडियो टाइम से पब्लिश भी करना चाहती थी। तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी ये वीडियो रॉ लगे, बट मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें मैं दिखा दूँ। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट माई फेवरेट आई शैडो पैलेट्स। अगर आपके कोई क्वेश्चन है ना आई शैडो पैलेट को लेके, या आप कोई आई शैडो पैलेट के बारे में पूछना चाहते हो, प्लीज़ इसी रेंज में पहले पूछोगे तो मैं आंसर कर पाऊंगी। लेकिन अगर आप अफोर्डेबल में पूछोगे तो मैं आंसर इतने अच्छे से क्वालिटी का नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो चीज़ मैंने ट्राई की ही नहीं
उसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती, पर जिस ब्रांड की मैंने चीजें ट्राई की है ना, उसका मैं आपको कुछ बेसिक और बता सकती हूँ। तो आप आराम से पूछो मुझसे, यहाँ नहीं पूछ पाते हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। दिस वॉज eyeshadow collection of Neha Devgan, and I shall see you in next one with all my vegan and cruelty free lipsticks. वीडियो बना रही हूँ उसकी भी, बहुत सारी बन गई हैं बट और बाकी हैं, तो वो भी मैं आपको बना के फिर नेक्स्ट वीक में मिलती हूँ, ठीक है? बाय, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय।